Jai Hind everyone. So in the lecture series of the machine learning, today we are going to start a very interesting topic, that is the instance-based learning. So as the name defines the instance-based, we have to deal with certain instances. Instances means whatever we are having at the right time, at the current situation, what instances it's happening, they will be dealing on that cases. Simply saying is that they doesn't work by their own intelligence. They will talk to the instances, they will get the information from certain instances, they will get the information from certain environment, and from those environment they will simply have the identification of the solution. अगर हम सिंपली बात करें, if a certain ask any question in the class to a student, fine, मैंने किसी बच्चे से क्लास में क्वेश्चन पूछे ना, ask बेटा what is the answer of this question, is it yes or is it no? So what he'll do is that he will not have its own utilization on its own brain. He will simply ask to nearby the students who are sitting behind them, isn't it? They will ask to the student sitting behind on the right hand side, on the back of him, or in the left hand side, or in the front of him. From all the students, he or she will capture certain information, and he will revert back to me the answer, that the answer of this question is yes or no. So the instances happened. He or she will collect that information. He will not use its own brain. He will not use its own training session for getting the answer. He will not have any evaluation in his mind to get that answer. He will simply take the information from all the instances and simply revert back to the answer. To me, it's yes or no category. Fine. So instance-based learning is a lazy learning. That is what's mentioned, lazy learning. He had not used his own mind. He or she had not used his own mind. Isn't it? उसने सिर्फ अपने आस पड़ोसियों से पूछा, कम्युनिकेशन करा एंड सिंपली रिवर्ट बैक आंसर दे दिया, चाहे उन बच्चों ने गलत आंसर क्यों ना दिया हो. He had simply taken the answer and revert back to me. It is a lazy learning. He is not having its own computation. He is not working its own training perceptor. You're getting my point? That is why it's called the lazy learning. No explicit training phase is present in that case. Getting my point? So instead of building a global model, it stores the training data and uses it directly to make the prediction. उसने सारी information को लिया, capture करा, store करा अपने पास, और उस information के behalf पर simply revert back answer दे दिया. Getting my point? So when a new query, that is a test instance, comes, the algorithm compares it with the stored examples and predict based on the similarity. अगर कोई same question नए तरीके का आता है और already वो past database में present है, तो वो simply क्या करेगा? It will do the comparison from the past database and it will simply revert back the answer on the behalf of the past database, and he will calculate the similarity on the behalf of certain methods, which we will discuss further about that, कि कौन सा method कौन से nearby उस database की है जिसके through वो answer को calculate कर सके. So key characteristics is that the first one is, of course, we have discussed, that is a lazy learning. No abstract model is created in advance. Competition happens at the prediction time. कितना दिमाग मुझे लगाना है? मुझे 4 बच्चों से ही आंसर पूछना था रिवर्ट बैक रिस्पॉन्स देने के लिए, या मैं पूरी क्लास से पूछूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, or to a single row or to two rows. So competition happens at the random situation, isn't it? I asked a question to a student, he randomly asked to the other students of the first row or from the second row, and he revert back to me. There is no specific model for that. There is no abstract model present for that. That is, it is a lazy learning. Fine. Similarity measure it used to do, it relies on the distance और द सिमिलैरिटी मैट्रिक्स, यानी कि कितना दूर है. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर मैंने किसी बच्चे से क्लास में एक क्वेश्चन कोई भी पूछा और आस्क कि बेटा मुझे बताइए कि इसका आंसर यस है कि नो है, तो वो क्या करेगा बेटा? ही विल आस्क टू द नियर बाय स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग. वो ऐसा तो नहीं करेगा, अगर वो बच्चा सेकंड बेंच पे बैठा है तो वो लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा होगा उससे तो कम्युनिकेट नहीं करेगा कि हाँ भाई मुझे इसका आंसर बताओ. वो क्या करेगा? जितनी दूरी मेरी है बच्चों से, डिस्टेंस को मेजर करेगा, और जो नियर डिस्टेंस पे होंगे जिसका डिस्टेंस बहुत कम होगा, वो उन्हीं से ही कम्युनिकेट करके मुझे आंसर का रिवर्ट बैक रिस्पॉन्स देगा. तो दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर, इट वर्क्स ऑन द डिस्टेंस और द सिमिलैरिटी मेजर. जो नियर बाय नेबर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करके वो रिवर्ट बैक रिस्पॉन्स को करेगा. और उसके कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि यहाँ मेंशन है, लाइक द यूक्लिडियन डिस्टेंस इज प्रेजेंट, द मैनहट्टन डिस्टेंस इज प्रेजेंट, कोसाइन सिमिलरिटी मेथड इज प्रेजेंट, एंड मेनी मोर फॉर्मूलाज, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस आर देयर, विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन हैव द कैलकुलेशन ऑफ द कितना डिस्टेंस है हमारा, कितनी दूरी है हमारी, जिससे हम आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? Local approximation, of course, prediction are based on the nearest neighbor in the data set. जो मैंने अभी आपको बताया वो सिर्फ डिस्टेंस के बिहाफ पर पास के लोगों से ही कम्युनिकेट करेगा. इट वर्क्स लोकली, इट विल नॉट वर्क एज अ ग्लोबली होल सोल पर. वो पूरी क्लास से नहीं बात कर रहा, वो सिर्फ लोकली जो उसके आसपास के सर्कल के जो राउंड में बच्चे बैठे हैं सिर्फ उनसे ही कम्युनिकेट करके रिवर्ट बैक मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है कि आंसर इज यस एंड नो.
Getting my point? Of course, it's a memory based. It requires us storing a large amount of training data, क्योंकि वो सब हर किसी से बात करे, वो सिर्फ अपने दिमाग का यूज नहीं कर रहा, वो हर जितने भी बच्चे उसके आसपास हैं, उसके दायरे में आ रहे हैं, नियरेस्ट नेबर्स हैं उसके, उन सब की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके अपने पास रखेगा, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेगा कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए और वो इसका रिवर्ट बैक आंसर दे देगा. गेटिंग माई पॉइंट? So algorithms, अगर मैं इसके अंदर बात करूँ, the instance-based learning, as it works on the different instances, it is having certain categories of algorithms. The first one is the k nearest neighbor. Second one is the locally weighted regression, and third one is the case-based reasoning. Fine. So we will discuss one by one about all these algorithms. The first one is the KNN. So what does the KNN do is that it classifies the new instance by majority voting among its k nearest neighbor. तो हमने अभी हमने समझा बेटा कि हम क्या करेंगे, अपने जो आसपास के नेबर्स हैं, जो नियर बाय नेबर हैं, उन सब से हम कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे आसपास 5 बच्चे बैठे हैं और मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा. ठीक है, और मुझे एक पता है कि आंसर यस है या नो है या ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, आई हैव टू गिव द प्रेडिक्शन ऑफ दैट थिंग. फाइन. 5 बच्चे अगर मेरे आसपास बैठे हैं, 5 बच्चों में से 3 बच्चों ने कहा द आंसर इज यस, 2 बच्चों ने कहा द आंसर इज नो. तो अब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मैं किसको रिवर्ट बैक दूं, isn't it? तो मैं क्या करूंगी, आई विल डू द वोटिंग. जिसकी मेजॉरिटी वोटिंग होगी उस आंसर को मैं आगे जो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा उसको रिवर्ट बैक में रिस्पॉन्स करूंगी. सो द आंसर विल बी यस इन दिस केस, क्योंकि मेरे पास 5 यस आए हैं और 2 नो आए हैं. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाट इज मेंशन्ड हियर, द मेजर वोटिंग among its k nearest neighbors. So it works on the voting classification method. पहले वो neighbors को आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद फिर वो वोटिंग करेगा और उस वोटिंग के बिहाफ वो प्रेडिक्ट करेगा. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा है, if 3 out of 5 nearest neighbors are yes, then the instance will classified as yes categorization. Getting my point? So second one is the locally weighted regression. Again, it's an instance based learning. It performs regression locally around the query point. जो भी query point निकल कर आएगा, जो भी मेरी query है उसके लोकली डिटेल्स के आसपास वो काम करेगा, उसी के रेलेवेंट वो नया मॉडल क्रिएट करेगा और उसी के रिवर्ट बैक वो रिस्पॉन्स करेगा. एंड यस ऑफ कोर्स क्लोजर इंस्टेंसेस हैव हायर वेट्स, क्योंकि जो मेरे आसपास के इंस्टेंसेस हैं उनको मैं ज्यादा वेट की वैल्यू दूंगी, क्योंकि मुझे उन्हीं को काउंट करके तो रिस्पॉन्स करना है. जो दूर है मैं उनको तो वेट की वैल्यू कम ही दूंगी. इन डिटेल वी विल डिस्कस मोर एलैबोरेशन इन फर्दर कमिंग presentation. The third one is the case-based reasoning. As the name declares, the case-based reasoning, we are simply talking about certain cases. जो मेरे कोई भी केस हुआ है उन सारे केसेस को मेरे पास इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है. कोई नया केस आया, what I'll do, I will do the matching, I will check the similarity and on the behalf of the similarity, जो केस मेरा क्लोजर होगा उसके रिवर्ट बैक I will simply respond to that case. Getting my point? Of course, we will discuss in detail in coming presentation. So example for the instance-based learning is, for example, we are having a data set of patients with certain attributes. कुछ attributes है, कुछ features हैं हमारे पास. Temperature है एक आपके पास, एक cough है, yes and no. COVID है, categorization, yes and no. If a new patient has temperature 101 degree Fahrenheit, cough is yes, then KNN compares this patient with past stored patients. तो अगर मेरे पास ये 2 पैरामीटर है, टेम्परेचर एंड कफ, इन दोनों का मैंने क्या करा, विद हेल्प ऑफ द KNN मैंने प्रीवियस पास्ट इन्फॉर्मेशन को चेक करा. अगर वो पेशेंट मेरा यस कैटेगरी में आ रहा है, कोविड यस की कैटेगरी में आ रहा है, द सिस्टम विल सिंपली प्रेडिक्ट दैट यस इट इज हैविंग अ कोविड. सो पास्ट इन्फॉर्मेशन की भी आपको कंपैरिजन करके सिंपली रिवर्ट बैक को रिस्पॉन्स कर देना. एडवांटेजेस क्या है? ऑफ कोर्स इट्स वेरी सिंपल एंड इनिशिएटिव. नो ट्रेनिंग टाइम रिक्वायर्ड, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है. कैन अडेप्ट टू न्यू डेटा इजीली, क्योंकि नया डेटा वो ले रहा है, सब डेटा को लेकर वो इन्फॉर्मेशन को सुनेगा, समझेगा, कैप्चर करेगा ही करेगा. वर्क्स वेल फॉर कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज. कॉम्प्लेक्स डेटा पे क्यों काम करेगा बेटा? क्योंकि उसे अपना दिमाग नहीं, वो सबका दिमाग का यूटिलाइजेशन करके रिवर्ट बैक रिस्पॉन्स करेगा. वो आसपास की सारी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करके फिर रिवर्ट बैक रिस्पॉन्स करेगा. दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री. जैसे कि हमने उसमें देखा, हर क्वेरी पॉइंट के लिए एक नया मॉडल क्रिएट करना, एक हर एक डिजाइन को क्रिएट करना. नुकसान क्या है? ऑफ कोर्स हाई कॉम्पिटिशन एट प्रेडिक्शन टाइम, क्योंकि हमारे पास ज्यादा डेटा है, कंपटीशन टाइम में ज्यादा लगेगा. मैं 5 लोगों से बात कर रही हूँ, मैं 10 लोगों से बात कर रही हूँ. नीड्स टू कंपेयर विद मेनी स्टोर्ड एग्जांपल्स, सबसे कंपैरिजन को करना. लार्ज मेमोरी रिक्वायरमेंट, ऑफ कोर्स स्टोर्स ऑल द ट्रेनिंग डेटा, इसलिए मुझे मेमोरी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी. सेंसिटिव टू नॉइज एंड इररेलेवेंट एट्रीब्यूट्स. अगर कोई नॉइज है, कोई इररेलेवेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो मेरे डेटा के नियर बाय आसपास आ रहे हैं, डिस्टेंस मेरा कम है, वो है तो लेकिन नॉइज पर मेरे डेटा को अफेक्ट कर रही है, तो उससे क्या होगा, मेरा जो रिजल्ट होगा वो भी अफेक्ट करेगा ही करेगा. Performance depends on the choice of distance matrix and the value of k.
यानी कि परफॉर्मेंस आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है आपके डिस्टेंस मैट्रिक पे. वी आर हैविंग सर्टेन फॉर्मूलाज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, इजंट इट? तो मुझे मे बी पॉसिबल मैंने स्टार्टिंग में यूक्लिडेड डिस्टेंस यूज कर लिया हूं. इंस्टेड ऑफ दैट फॉर माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोसाइन सिमिलरिटी मेथड इज मोर एक्यूरेट. So may be possible on the behalf of that my performance get affected or with the help of value for k. K means कितने नेबर्स को हम चुनेंगे. मैंने 3 लोगों से बात करी, मैंने 5 लोगों से बात करी, मैंने 10 लोगों से बात करी, तो वो जो k की वैल्यू है अगर मैं रैंडमली चूज कर रही हूँ या किसी मेथड से भी चूज कर रही हूँ, अगर वो गलत हो जाती है तो डेफिनेटली मेरा रिस्पॉन्स जो है वो गलत होगा ही होगा. जैसे सिंपल से मैं अगर कहूँ कि अगर मैंने k की वैल्यू मैंने 4 ले ली, दैट इज इट्स एन इवन वैल्यू. 2 ने मुझे कहा यस, 2 ने कहा मुझे नो, तो मेरे पास आंसर क्या होगा? I don't know, I'll give certain yes or no. मैं randomly yes and no revert back response कर दूंगी. So that may be a wrong answer. So that is a disadvantage of your instance based learning. Applications बहुत सारी हैं. For example, we are talking about the medical diagnosis part. It is based on the case based reasoning. Then the handwriting recognition, recommendation systems, and your spam detection, and many more applications we can use in the instance based learning. So we'll start with the first algorithm, that is the K nearest neighbor algorithm. It's a very, very important algorithm and practically used in number of projects. You can use it because it's, of course, it's easy to implement also, and it is, of course, used in a complex problem also. So it is saying that it's a supervised machine learning algorithm generally used for classification, but can also be used for regression task. यानी हम इसको दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए भी और रिग्रेशन के लिए भी. क्योंकि ये किस कैटेगरी में आती है? ये आती है सुपरवाइज्ड लर्निंग के केस में, यानी कि जहां पर सुपरवाइजर प्रेजेंट है, जहां टीचर प्रेजेंट है बताने के लिए कि सही है कि गलत है. ठीक है. और इसके 2 मेथड्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे. दैट इज द 2 कैटेगराइजेशन ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग इज क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, isn't it? So second point says that it works by finding the k closest data points, that is the neighbors, to give a given input and make a prediction based on the majority class for the classification और the average value for the regression. तो मैंने जैसे बताया बेटा, हम क्या करेंगे? हम नियरेस्ट नेबर को आइडेंटिफाई करेंगे, हम k की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद उनके रिस्पॉन्स को लेंगे, उसकी बिहाफ पर हम वोटिंग क्लासिफिकेशन करेंगे और रिवर्ट बैक रिस्पॉन्स करेंगे. और रिग्रेशन के केस में हम क्या करेंगे? हम एवरेज निकालेंगे उन वैल्यूज का जिसके बिहाफ पर हम रिवर्ट बैक रिस्पॉन्स करेंगे. यानी क्लासिफिकेशन में हम वोटिंग करते हैं, रिग्रेशन में हम एवरेज निकालते हैं. ठीक. Since KNN makes no assumptions about the underlying data distribution, it makes a non-parametric and instance-based learning method. क्योंकि इसमें कोई assumption नहीं हो रही है, जैसा डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली उसी के बिहाफ पर रिवर्ट बैक रिस्पॉन्स कर दिया. इसीलिए इसको हम नॉन पैरामीट्रिक कहते हैं, यहाँ से हम कहते हैं इंस्टेंस-बेस्ड लर्निंग मेथड. So it is also called, of course, a lazy learner algorithm because it does not learn from the training set immediately. Instead, it stores the entire data set and performs the computation and only at the time of the classification it revert back the answer. क्योंकि मैंने कहा वो लेजी लर्नर है, सबसे इंफॉर्मेशन को लिया, उसको स्टोर करा अपने पास, जब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा तब मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने कंप्यूटेशन करी, या मैंने करंट क्वेश्चन भी पूछा तब उसने सबसे पूछकर एनालिसिस करा, वोटिंग करी, वोटिंग करने की रिवर्ट बैक उसने रिस्पॉन्स करा कि इसका आंसर ये होना चाहिए. ठीक है बेटा. So what is k? In that we have discussed about k. K क्या है बेटा? K is just a number that tells the algorithm how many nearby points to a neighbor to look at when it makes a decision. मुझे कितने लोगों से बात करनी है आंसर के लिए? मैं सिर्फ अपने क्लोज बेस्ट फ्रेंड से ही बात करके रिवर्ट बैक कर दूं, या मैं 4 लोगों से कम्युनिकेशन करूं, या मैं काम करता हूं मैं पूरी क्लास का ही इन्फॉर्मेशन में ले लेती हूँ और उसके बिहाफ पर मैं रिवर्ट बैक अपना आंसर दूंगी टीचर को कि ये मेरा आंसर है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ k. Getting my point? So imagine you are deciding which fruit it is based on the shape and size. 2 पैरामीटर मैंने लिए, एक शेप और एक आपका साइज लिया. Getting my point? You compare it with the fruits you already know. आपने कंपैरिजन करा जो ऑलरेडी फ्रूट्स आपके पास प्रेजेंट थे. अगर मान लीजिए मेरे पास k की वैल्यू मैंने 3 चूज कर लेती हूँ, the 3 value I'm choosing for the k, the algorithm looks at the 3 closest fruits to the new one. उसने मैच करा जो नियर बाय क्लोजेस्ट वैल्यूज थी उसको उसने कैप्चर कर, सिर्फ 3 वैल्यूज को उसने उठाया क्योंकि मैंने k की वैल्यू 3 ली है. If 2 of those 3 fruits are apple and 1 is banana, then the algorithm says that the new fruit is an apple because most of its neighbors are apple. अगर मैंने कहा 2 ने कहा apple है, 1 ने कहा banana है, तो क्या होगा? जब वोटिंग क्लासिफिकेशन हमने लगाया तो क्या हुआ? हमारा आंसर क्या निकल कर आया? It's an apple. So getting my point? That is again an example for how we are using the value of k. K is the neighbor. Clear?
So how to choose the value of the k? Of course, it's a tough question कि मैं k की वैल्यू कैसे चुनूं? मैं 3 चुनूं, 4 चुनूं, 5 चुनूं, 10 चुनूं, मैं कितनी 10 वैल्यू चुनूं या मैं कितनी वैल्यू को आइडेंटिफाई करूं जिससे मेरा आंसर एक्यूरेट आ सके या नियर टू द एक्यूरेसी आ सके. So the value of k in KNN decides how many neighbors the algorithm looks at when making a prediction. Choosing the right k is important for good results. It's very, very important. If the data has lots of noise or outliers, using a larger k can make the prediction more stable. यानी कि डेटा सेट अगर मेरा बहुत बड़ा है, of course तो मुझे वैल्यू ऑफ k को भी बड़ा ही लेना चाहिए ताकि मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके. But if the k is too large, the model may become too simple and miss important patterns, and this is called the underfitting. अगर मान लीजिए मेरे पास 20 का डेटा सेट है और 10 मैंने k की वैल्यू ले ली, तो क्या होगा? वो तो मेरा बायस डेटा सेट हो जाएगा, एक ही तरफ मुझे रिवर्ट बैक रिस्पॉन्स कर देगा, isn't it? 10 का ले लिया, मान लीजिए 10 के 10 ही वो सारे यस ही निकल कर आ गए, तो क्या होगा? मेरा आंसर नो वाले मेरे अलग क्लासीफाई हो गए, तो क्या होगा? डेटा मेरा प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, आंसर मेरा गलत होगा ही होगा, isn't it? That is what's mentioned here. If k is too large, the model may become too simple and miss the important patterns, and this is called the underfitting. Fine. So k should be picked carefully based on the data. Getting my point, everyone? So the first method to identify the k value is the simplest method is the cross validation. यानी मैं क्या करूंगी? I will simply apply the cross validation part. So it says that it is a good way to find the best value of k is by using a k-fold cross validation. This means dividing the data set into k parts. हम क्या करेंगे? मॉडल को k parts में divide करेंगे. ठीक है? The model is trained on some of these parts and tested on the remaining ones. This process is repeated for each part. हम क्या करेंगे? हर part के लिए उसको हम repeat करेंगे बार बार. The k value that gives the highest average accuracy during these tests is usually the best one to use. जो value मुझे k की इसमें best देगी, उसी को हम use करेंगे. So एक छोटे से example समझते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है. So in the k-fold cross validation, the data set is divided into k equal parts. यानी ऐसा समझिए बेटा, एक पेपर है मेरे पास, उसको मैंने कितने फोल्ड में इसको मैंने कर दिया. अगर मैंने उसको 5 फोल्ड में कर दिया या 6 फोल्ड में कर दिया, उस फोल्ड की वैल्यू को उस फोल्ड हर एक फोल्ड के बिहाफ पर आई विल कैलकुलेट सर्टेन वैल्यूज. द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन k-1 फोल्ड एंड टेस्टेड ऑन द रिमेनिंग 1 फोल्ड. क्योंकि हमें पता है बेटा, कोई भी मॉडल में हम काम करते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, टेस्टिंग पार्ट में और ट्रेनिंग पार्ट में. तो हमने क्या करा? k-1 फोल्ड को तो मैंने रख दिया ट्रेनिंग के लिए और एक फोल्ड को मैंने रख दिया आपके टेस्टिंग के लिए. ठीक. द प्रोसेस इज रिपीटेड k टाइम्स, ईच टाइम यूजिंग अ डिफरेंट फोल्ड फॉर टेस्टिंग. हम क्या करेंगे? हर बार प्रोसेस को मैं रिपीट करूंगी, हर बार मेरा ये जो है आपका जो टेस्टिंग का फोल्ड है वो रिवाइज होता जाएगा. ठीक. So the final accuracy is the average of all the k test results. अब इसको हम एग्जांपल अच्छे से समझते हैं बेटा. Finding the best value for the k for the KNN is, suppose we have a small data set of 100 samples. मेरे पास 100 samples का data set है and we want to find the best value of the k for our KNN classifier. ठीक है, मेरे पास 100 का सैंपल डेटा सेट है. अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है कि मैं क्या k की वैल्यू रखती हूँ. इसके लिए we will use the 5-fold क्रॉस वैलिडेशन. मैंने क्या करना है इसमें? मैं 5 फोल्ड को मैं अप्लाई करती हूँ. वो कैसे अप्लाई करते हैं वो हम देखते हैं. स्टेप 1, व्हाट वी विल डू इज वी विल डिवाइड अ डेटा सेट. हमने डेटा सेट को डिवाइड कर दिया 5 फोल्ड के अंदर. मैंने सैंपल को डिवाइड कर दिया. फर्स्ट फोल्ड में 1 to 20, सेकेंड फोल्ड में 21 to 40, थर्ड फोल्ड में 41 to 60, फोर्थ फोल्ड में 61 to 80 और फिफ्थ फोल्ड में 81 to 100. मैंने ऐसे फोल्ड्स बना दिए अपने डेटा सेट के. ठीक है बेटा. अब हम क्या करेंगे? वी विल ट्राई द वैल्यू फॉर द k3. फॉर एग्जांपल वी परफॉर्म द 5 राउंड्स. अब जो k की वैल्यू मेरी 3 है, मैं उस 3 के लिए मैं काम करूंगी, यानी कि मैं अगेन एंड अगेन मॉडिफाई करूंगी फॉर दिस वैल्यू. ये मैंने फोल्ड्स ले लिए आपके और हर बार मैंने फोल्ड को रिवाइज कर दिया. मैंने क्या करा? पहले फोल्ड में मैंने क्या करा? मैंने लिया 2, फोल्ड 2 लिया, मैंने फोल्ड 3 लिया, फोल्ड 4 लिया, मैंने फोल्ड 5 लिया. ठीक है बेटा. और टेस्टिंग मैंने किस पे करी? मैंने 1 पे करी. ठीक है बेटा. सिमिलरली हमने क्या करा? सेकेंड राउंड में मैंने अपडेट कर दिया उसको. 1 फोल्ड लिया, थर्ड फोल्ड लिया, फोर्थ लिया, फिफ्थ लिया और हमने फिर सेकेंड फोल्ड को ले लिया टेस्टिंग पे. और हर एक के लेवल पर मैंने उसकी एक्यूरेसी को कैलकुलेट कर लिया. ठीक है बेटा. ये हमने लिया k इक्वल्स टू 3, यानी कितने पैरामीटर्स को हम यूज करके रिवर्ट बैक रिस्पॉन्स हम करेंगे. दैट मीन्स इसके अंदर जो k की वैल्यू ली है, आप समझिए बेटा, ये जो k की वैल्यू हमने 3 ली है वो इसके अंदर की वैल्यू एनालिसिस के लिए लिया है. यानी कि हर एक राउंड पे
हमने k की वैल्यू को 3 लिया है। आप समझ रहे हैं बेटा, यहाँ पर जो हम अप्लाई कर रहे हैं हर ट्रेनिंग के अंदर, यहाँ पर हम k की वैल्यू को 3 ले रहे हैं, जिसके बिहाफ पर हमारी एक्यूरेसी निकल के आ रही है ये। For the round 1 it is 82%, for round 2 79%, for round 3 85%, 4 के लिए 80% है और 5 के लिए 84% है। समझ में आ रहा है बेटा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब मेरे पास सारी की सारी एक्यूरेसी निकल कर आ जाएगी, इन ऑल एक्यूरेसीज का हम एवरेज निकालेंगे, जो मेरा आया फॉर एग्जाम्पल 82%। यहां तक समझ में आया बेटा। मैं फिर से रिपीट बैक कर रही हूँ बेटा, अगर मैंने 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन लगाया है, उस डेटा सेट को मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी और रैंडमली आई विल चूज सर्टेन सेट कॉम्बिनेशन हम चूज करेंगे। जैसे पहला कॉम्बिनेशन मेरा है 1 2 3 4 और मैंने टेस्टिंग के लिए रख दिया 5। सेकंड मेरा है 1 2 3 5, मैंने टेस्टिंग के लिए रख दिया 4। ऐसे रैंडमली मैं चूज करूंगी। और ये जो ऊपर लिखा है ट्राई K3, यानी कि इसके अंदर मैंने जो है वो 3 नेबर्स की वैल्यू को चूज करके ही मैंने रिस्पॉन्स निकाला है, एक्यूरेसी की वैल्यू को निकाला है। अभी जब भी सारी मेरी एक्यूरेसी निकल कर आ गई, मैंने इसका एवरेज कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बेटा। अब जब हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है फर्स्ट राउंड के लिए, तब हम क्या करेंगे, हम अगेन अलग अलग k की वैल्यूज के लिए हम रिवर्ट बैक करेंगे। K1 के लिए, K3 के लिए, K5 के लिए, K7 के लिए, K9 के लिए। उसके रेलेवेंस में जितनी मेरी एक्यूरेसी निकल कर आएगी वो सारी की सारी मैं मेंशन कर दूंगी। और उसके बाद मैं चेक करूंगी कि अगर मेरा 1 पे 78 था, 3 पे 82 था, 5 पे 85 था, तो मेरी बेस्ट एवरेज एक्यूरेसी किस k की वैल्यू पर निकल कर आती है। तो मैंने चेक करा, मेरी k की वैल्यू 5 पर बेस्ट निकल कर है, दैट इज 85%। तो मैं अपने डेटा सेट के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, हम चूज करेंगे डेटा सेट के लिए दैट इज द वैल्यू k इज 5। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया बेटा सबको? मैं फिर से बेटा इसको आपको रिव्यू करा रही हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्रॉस वैलिडेशन इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। क्रॉस वैलिडेशन में हमने क्या करा बेटा, वी हैव डिवाइडेड द डेटा सेट, हमने डिवाइड कर डेटा सेट को। उसके बाद इसके अंदर हमने उस फोल्ड को डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए। कॉम्बिनेशन बनाने के बाद हमने एवरेज कैलकुलेट करा। एवरेज कैलकुलेट करने के बाद हमने फिर से नई नई के वैल्यूज को यूज करा, K1, K3, K5, K7, K9 और रिवर्ट बैक हमने जब चेक करा कि किसकी एक्यूरेसी आपकी जरा अच्छी थी, उसी एक्यूरेसी को यूज करते हुए हमने उसके रेलेवेंस में जो K निकल कर आया उस वैल्यू को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है बेटा, दैट वाज द फर्स्ट मेथड। फाइन। सेकंड मेथड है आपका एल्बो मेथड। इट इज अगेन अ वेरी सिंपल मेथड। एज अ नेम डिफाइंस एल्बो, एल्बो मीन्स क्या होता है, ये हमारी कोनी। ठीक है, तो जहां पर भी मेरी एल्बो बनेगी वो मेरा वैल्यू ऑफ द बेस्ट K होगा ही होगा। देखते हैं बेटा इसको क्या है ये। वी ड्रॉ अ ग्राफ showing the error rate or the accuracy for different K values. As the K increases, the error usually drop at the first, but after a certain point, error stop decreasing quickly. एक लेवल पे आके एरर आपका कम होना शुरू हो जाएगा, वहां पर आपका ग्राफ जो है वो आपका कर्व बनाएगा ही बनाएगा। The point where the curve changes direction and looks like an elbow is usually the best choice for the K. जैसे कि मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया है आपके लिए। How it works? We will choose a range of K values from example 1 to 10. We will train the model. For example, हमने KNN से यूज करा या K मीन से हमने K की वैल्यू को आइडेंटिफाई करा, ट्रेन करा। फिर हमने एरर निकाला। एरर भी हम निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मेथड। फॉर एग्जांपल K मीन से हम निकाल सकते हैं एरर को। फिर हमने इसको ग्राफ को प्लॉट करके हमने ये देखा जहां पर भी आपकी एल्बो बेंड हो रही है वो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी मेरी K की वैल्यू। जैसे कि ये डेटा सेट हमें दे रखा है बेटा, इसके बिहाफ पर आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कहां पर मेरी एल्बो बनकर आ रही है, कहां पर मेरा ये पॉइंट बनकर आ रहा है। इट सेज दैट वी आर यूजिंग द एल्बो मेथड फॉर द KNN। लेट्स से वी आर हैविंग डेटा सेट, मेरे पास नेबर्स है, मेरे पास एरर रेट है, यानी कि अगर हम देखेंगे 1 पे 22, 2 पे 18, 3 पे 15, 4 पे 14, 5 पे 13, 6 पे 12.8, 7 पे 12.6, 8 पे 12.5 एंड 9 पे 12.5। तो मेरी एल्बो कर्व कहां बन रहा है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ बेटा। अगर आप प्लॉट भी करेंगे, दैट मींस एट द वैल्यू ऑफ द K5 पे मेरा एल्बो बनना शुरू हो गया है। यानी कि जहां पर मेरा एरर रेट को मॉडिफिकेशन मिला, जहां जिस पॉइंट पे मेरा पॉइंटेज निकल कर आ रहा है वो वैल्यू मेरी K की बेस्ट होगी ही होगी। Getting my point? That is the second important method for the identification of the value of K. Fine. So step by step observation, of course, from K1 to 5 the error rate drops quickly, model improves rapidly. After K equals to 5 the improvement becomes very small, the curve flattens, the elbow point is where the improvement slows down sharply. So that is why we've chosen the value as 5. So it means K5 is the best balance between accuracy and your simplicity. ठीक है बेटा? And the last method is the very very common method is the odd values for the K. आप odd को ही चुनिए, क्योंकि मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था, अगर हम इवन चुनते हैं, मैंने 4 चुन लिया, 4 चूज कर लिया और मैंने वोटिंग क्लासिफिकेशन करी तो क्या होगा, 2 yes और 2 no, तो आई एम नॉट हैविंग अ प्रॉपर आंसर।
इसलिए अगर आपको कोई मेथड समझ में नहीं आ रहा तो k को हम क्या चूज करेंगे, हम ऑड वैल्यू को चूज करेंगे. 3, 5, 9, 7, any odd number you can choose for depending on of course the data set. कितना बड़ा डेटा मुझे लेना है, कितना बड़ा k की वैल्यू को मुझे लेना है, depending on your problem statement, you can choose the value k as odd value. So it says that it's a good idea to use an odd number of k, especially in classification problems. This helps avoid ties when deciding which class is the most common among the neighbors. Clear, everyone? So that is the three methods of that. So today we have studied about the instance-based learning. And instance-based learning, we are having three categorization. That is the KNN, then logical weighted regression, and the case-based learning. We have started the KNN part, and in the KNN part, we discussed about how we can identify the value of the K. K value we can identify by three methods. That the first one is the cross-validation, the second one is the elbow method, and third one is the odd value. So in the further lecture series, we will discuss about more about the KNN part and the rest of the algorithms of the instance-based learning. Thank you so much.